My Startup TV. I'm your host Abhishek. Today on our Womanpreneur show, we bring to you the latest from the world of women and business. Top headlines for today are: Odisha civic body helps 7 women sanitation workers become entrepreneurs. Member of European Parliament call for funding for female entrepreneurs. Amway India empowering women entrepreneurs. Before I proceed with today's news, I request our viewers to take necessary precautions as the battle against COVID-19 is not over yet. Remember, this is the time we fight the virus together. News for today are: the Berhampur Municipal Corporation in Odisha has helped 7 women sanitation workers become entrepreneurs by giving them loan benefits to buy sewer tank cleaning machines. The European Parliament is set to call for more funding for female entrepreneurs in the European Union, and MEPs are gearing up for a vote on a new report on gender equality in science, technology, engineering and mathematics. Amway India, India's leading FMCG direct selling companies, is trying to foster the spirit of entrepreneurship through its livelihood skill development program in an effort to empower women. Technology company Continental India, in association with Central Foundation, has launched an initiative to boost women workforce participation in the manufacturing sector through various skill development programs. That's all for today. Sense. I've not really used much, but I think it's a great platform for kind of young upcoming companies to showcase their products and solutions and kind of reach a larger audience, right? Like one of the last HR conferences we met, in HR of like a multi-billion-dollar company, right? That only happens in a conference or like a showcasing platform like this, right? Otherwise, you reach out to them on LinkedIn or Twitter or send an email and just goes into some inbox, right? But on these kind of platforms you kind of get that face to face or in person or even like a virtual connect with that person, right? So then you kind of get that edge. So that's, I think, this is a very good way for to showcase and get some early feedback and kind of build a brand. दादी के हाथ का स्वाद याद दिलाए दादी मसाले। नमस्कार, मैं हूं श्वेतांक कात्यायन और स्वागत है आपका माई स्टार्टअप टीवी में। मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं फाउंडर ट्रैक का एक और शो, और आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मोरेस कॉस्मेटिक की फाउंडर छवि अग्रवाल जी। छवि जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कुछ आपके बारे में और कुछ आपकी कंपनी के बारे में। तो श्वेतांक, मैंने ये बिजनेस हमारा जो नाम है मोरास कॉस्मेटिक्स, हमने ये स्टार्ट किया क्योंकि जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है उसके अंदर एक नए ब्रांड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। एक नया ब्रांड जो कि लिपस्टिक की एक फॉर्मुलेशन की बात करें अगर आप भी, या कोई भी अगर आप फॉर्मुलेशन की बात करें, तो उसके अंदर काफ़ी चीज़ें होती है जो कि बहुत ख़राब होती है हमारे स्किन के लिए, हमारी हैंड्स के लिए, सब जगह के लिए, जो कि हमें नहीं लगानी चाहिए। जो इंग्रेडिएंट्स हम कहते हैं टॉक्सिक, वो होते हैं। तो पहले तो हमने बहुत ज़्यादा फॉर्मुलेशन पे स्टडी किया कि कौन सा इंग्रेडिएंट सही है, कौन सा नहीं होना चाहिए, एंड हमने ये देखा कि काफ़ी जितने भी ब्रांड्स हैं अभी इंडस्ट्री में, तो वो काफ़ी खराब फॉर्मुलेशन यूज़ करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए यूज़, जो कि हमारी स्किन के लिए काफ़ी खराब हो जाता है। जैसे कि अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, तो फिर आपको रैशेस हो जाएँगे, आपकी स्किन उखड़ने लगेगी, और उसके अलावा ब्लिस्टर्स वगैरह हो जाते हैं हाथों पे या स्किन पे भी। तो खराब फॉर्मुलेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि हमें देखनी पड़ती है। तो पहले हमने उन फॉर्मुलेशंस के बारे में काफ़ी स्टडी किया। उसके बाद हम फॉर्मुलेशंस के अलावा मोरास क्या कर रहा है, मोरास जो एक जो कंटेनर होता है जिसके अंदर आपकी फॉर्मुलेशन डलती है, उस पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। जैसे कि हमारा जो अभी आप कुछ भी यूज़ करते होंगे, आपका जब खत्म हो जाता है तो आप फेंक देते हैं वो। इसका मतलब आप और प्लास्टिक ऐड कर ही जा रहे हैं।
और हमारे अभी एनवायरनमेंट में कितना ज्यादा प्लास्टिक हो चुका है। तो फिर हमारा इतना कंजम्पशन के बावजूद हम लोग रुक नहीं रहे हैं। तो मुराज अभी एक इको फ्रेंडली पैकेजिंग, जो कि पैकेजिंग चाहे हम रीयूज करें या चाहे हम लोग उन पूरा प्लास्टिक को ही हम लोग रिमूव कर दें, उस पर काफी ज्यादा काम कर रहे हैं। तो ऐसे मुराज हमारा पूरा का पूरा इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में पूरा डिफरेंट है। तो ये हमारा मुराद से एक एम है, एक मिशन है जो कि हम लेके आ रहे हैं और लेके आ भी चुके हैं इनफैक्ट। मैम, आपने मोराज ब्रांड की शुरुआत कैसे की और इसके पीछे का मेन मोटिव क्या था? मैंने ये ब्रांड शुरू किया अराउंड 8 महीने पहले, एंड जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया उसके बाद मैंने इमीडिएटली इसको लॉन्च करा। ऊपर से ये जो कोविड का टाइम चल रहा है उसके अंदर लॉन्च करना बहुत डिफिकल्ट था। ब्रांड तो मैंने फिर जैसे ही मैंने अपने ग्रेजुएशन में काफी फॉर्मुलेशन के ऊपर सब रिसर्च कर रखा था। मेरे काफी रिसर्च पेपर भी छपे हैं इसी के ऊपर, फॉर्मुलेशन के ऊपर, ऑयल्स के ऊपर, जिसमें मैंने काफी रिसर्च किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मेरे को ये सही मौका मिल लगा कि अब मैं अपना जो आइडिया है इसको एक स्टार्टअप के रूप में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने इमीडिएटली शुरू कर दिया। उसके लिए मेरे को काफी काम करना पड़ा, हर मार्केट रिसर्च के ऊपर वगैरह वगैरह। तो इमीडिएटली उसके बाद तो लॉन्च कर दिया था। मैम, कोई भी स्टार्टअप हो या बिजनेस हो, उसको शुरू करने के लिए जरूरी होती है फंडिंग। तो आपने फंडिंग कैसे अरेंज की और कैसे उस फंडिंग को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया? अभी क्योंकि कोविड का टाइम है, फंडिंग बहुत ज्यादा मुश्किल थी। तो जितना हम जितना कलेक्ट कर पाए हमने उसको यूज किया फंडिंग के लिए। ऊपर से फंडिंग कहाँ पे यूज होता है स्टार्टिंग में, सबसे ज्यादा देखो, एक मैसेज है जो कि हमें लोगों तक पहुंचाना है। और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इतनी ज्यादा अभी मोनोपोली होती है कि उस मैसेज को पहुंचाने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट या जो मार्केटिंग होती है, सबसे ज्यादा फंडिंग उसमें लगती है। तो अभी हमारे अब सिंस अब प्रोडक्ट्स आए हैं, अभी आए हैं हमारे प्रोडक्ट्स। जैसे पहली रेंज आई है हमारी नेल पॉलिश। जो हमारी नेल पॉलिश है वो क्या करती है, जब आप नेल पेंट लगाते हैं आप अपने नाखूनों पे सीधा लगा रहे हैं। अगर आपका केमिकल हार्श होता है तो फिर आपके नाखून ब्रिटल हो जाते हैं, जो कि मतलब ब्रिटल मतलब आपके टूटने लग जाते हैं, बहुत जल्दी टूटने लग जाते हैं या आपके येलो हो जाते हैं। तो हमारा जो फॉर्मुलेशन है वो ये सब कुछ अवॉइड करवाता है और बिल्कुल मतलब आपके नाखूनों को ना ब्रीद करने देता है, जो कि बहुत जरूरी होता है। तो ये फंडिंग जो है, फंडिंग सबसे ज्यादा फॉर्मुलेशन की रिसर्च में लगती है। एंड जब रिसर्च खत्म हो जाती है तो उसको उस कॉन्सेप्ट को लोगों तक पहुंचाने में लगता है। तो फंडिंग का इस्तेमाल तो यहाँ पे हो रहा है, एंड फंडिंग मेरी सारी उससे आई है, अपने कलेक्टेड मनी। मैम, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जैसे इस वक्त कोविड-19 महामारी के दौरान कई बिजनेस रुक चुके हैं और उनमें कई घाटे हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का टर्म लिया था। तो कैसे आप आत्मनिर्भर भारत को देखती हैं और कैसे उसको इंडिया का फ्यूचर आंकती हैं? देखो, हमने क्या किया था, जो फॉर्मुलेशंस है हमने, देखो सबसे पहली बात जो मैंने अभी पहले एक्सप्लेन करी थी, फॉर्मुलेशन। मैंने पर्सनली फॉर्मुलेशन पूरी की पूरी रिसर्च किया उस पर। एंड हम जो फॉर्मुलेशन बनवा रहे हैं वो लोकल मैन्युफैक्चरर से बनवा रहे हैं। हमने पहले तो बाहर की कंपनीज के साथ टाई अप किया कि आप हमें बताइए कि इसके अंदर क्या क्या नहीं होना चाहिए, क्या गलत है, क्या नहीं, मतलब क्या नहीं करना चाहिए हमने। उसके बाद वो चीज हम अपने लोकल मैन्युफैक्चरर से डेवलप करवा रहे हैं। तो इससे हमारी जो लोकल कम्युनिटी है वो एक साथ ग्रो हो रही है। और साथ के साथ जितनी भी ये जो कोविड के कारण, पैंडेमिक के कारण जो जॉब्स वगैरह लूज भी हो रही हैं, तो हम लोग उसका भी ध्यान रखते हुए अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स को और अपग्रेड कर रहे हैं, अपलिफ्ट कर रहे हैं। हमारे जितने भी नए आइडियाज है वो भी हम लोग लोकली डेवलप करने की पूरी कोशिश करते हैं, जिससे कि हमें क्या हो रहा है कि हम लोग आइडियाज और हम लोग जो बाहर का अच्छा है, जो दूसरी कंट्रीज जैसे यूरोप वगैरह है उनका जो अच्छी चीज है वो सीखकर हम लोग इंडिया में डेवलप कर रहे हैं वो। तो इससे पूरा का पूरा कम्युनिटी का एक साथ अपलिफ्टमेंट हो जाता है। मैम, बड़ा बिजनेस हो या कोई छोटा स्टार्टअप, टीम की जरूरत होती है। तो हम आपकी कोई टीम के बारे में जानना चाहेंगे और कैसे आप उनको मोटिवेट करती हैं काम करने के लिए एज अ लीडर? मेरी टीम जो है, पहली बात तो जो एक टीम बहुत ज्यादा बड़ा रोल बनाती है एक किसी भी कंपनी की ग्रोथ में। और ये तो अच्छी बात है कि मेरी टीम को ना एक मिशन और एक विजन पता है मेरा, एंड वो लोग उसी के अंदर बिलीव करते हैं।
तो फिर ये बहुत आसान हो जाता है अगर उनको भी वही एक दो चीजें जो होती है, जो लगता है ना, जो फील होता है, जैसे कि मेरे को प्लास्टिक के ऊपर बहुत ज्यादा फील होता है, तो फिर मेरी टीम भी उस एक आइडिया को, पता है, जो एक फीलिंग है उसको समझती है, एंड इसलिए वो भी मोटिवेटेड रहती है। जैसे हम जब भी बाहर जाते हैं, इतना ज्यादा कचरा वगैरह देखते हैं, तो उनको भी लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए जो कि उस सब को थोड़ा कम कर दे। जो एक ऐसा आइडिया या एक ऐसी कंपनी जो कि उस चीजों पे काम कर रही हो, जो कि एक ऐसी कंपनी जो कि हमारे बारे में केयर करती हो, हमारे बारे में, हमारे पूरे एनवायरनमेंट के बारे में जो सोचती हो और जो कुछ करने के लिए तैयार हो। तो ये सब, इन सब के साथ मेरी टीम मोटिवेट रहती है। मैम, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बैकअप प्लान रखते ही रखते हैं, तो क्या आपने अपने लिए बैकअप प्लान रखा था कि अगर हमारा स्टार्टअप काम नहीं किया तो हम ये बैकअप प्लान है इस पे काम कर सकते हैं? बैकअप प्लान ना तब रखते हैं जब यू नो कि यू विल फेल। अगर आपको इतना डर है फेलियर का, तो आप स्टार्टअप ही ना करिए ना, क्योंकि स्टार्टअप इतना बड़ा रिस्क होता है, और मतलब आप सीधा रिस्क में जा रहे हैं। स्टार्टअप ये चीज है, बहुत ज्यादा प्रेशर था कि ठीक है मैं इंजीनियरिंग के बाद अपना एक जॉब ले लूं, और या तो फिर मतलब कुछ एक स्टेबल चॉइस चूज करूं, लेकिन मेरे को पता था कि मेरे को क्या करना है। एंड सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि मेरे को ये पता है कि क्या जरूरत है अभी। एक जरूरत समझने के बाद एक आपकी इंडस्ट्री हो गई, आपकी कम्युनिटी हो गई, आपके आसपास के लोग हो गए, आपको पता है कि उनके अंदर क्या एक चीज कमी है, और अगर आप वो कमी पूरी कर सकते हो तो फिर आपको चाहे जितनी भी मेहनत लगे, आपको करना चाहिए वो काम। मैम, आखिर में हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि आप मोरैज के जरिए लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं, और आप हमें क्या मैसेज देना चाहती हैं मोरैज के थ्रू? मैं अपनी कंपनी के तरफ से तो यही मैसेज दूंगी कि मुराज जो है हर एक चीज में काफी ज्यादा डिफरेंट है, चाहे वो वे ऑफ वर्किंग हो गया, चाहे वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हो गया। हम लोग बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सारे के सारे कंज्यूमर को, एक एवरेज कंज्यूमर को देना चाह रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग जितना भी ले रहे हैं उतना हम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अभी एक कैलकुलेशन कर रहे हैं जिसमें हम लोग अपना नंबर ऑफ पेपर का कंजम्पशन कैलकुलेट कर रहे हैं, जिससे कि जितना भी हम लोग अब पेपर यूज कर रहे हैं, हम लोग उसके बिहाफ पे एक ट्री प्लांट करेंगे। तो ये हम अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग जितना भी ले रहे हैं ना, जो मुराज ले रहा है एनवायरनमेंट से, वो उतना ही दे रहा है वापस। उसके अलावा हम लोग पैकेजिंग पे काम कर रहे हैं, हम लोग फॉर्मुलेशन पे काम कर रहे हैं। फॉर्मुलेशन तो है ही हमारी अच्छी, क्योंकि हम लोग जैसे कुछ केमिकल्स होते हैं पैराबेन वगैरह, तो हम लोग वो तो बिल्कुल यूज ही नहीं करते हैं। पैराबेन से होता है कैंसर, एंड सल्फेट्स होते हैं जिससे पूरी की पूरी स्किन में रैशेस और ड्राइनेस हो जाती है। हम लोग वो सारे के सारे केमिकल्स अपने फॉर्मुलेशन में इंक्लूड करते ही नहीं है। तो मोराज जो है हर आइडिया पे, हर एक लेवल से डिफरेंट है इंडस्ट्री में, तो आपको एक बार देखना चाहिए मोराज को एटलीस्ट वंस। एंड रही बात आपके लिए मैसेज, तो आप एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म लेके आए हैं जिसपे आप स्टार्टअप से बात करके, स्टार्टअप्स के बारे में बात करके एक लोगों को पहुंचा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी एक इनिशिएटिव है। एंड ऑल द बेस्ट ऑफ कोर्स। धन्यवाद आपका छवि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम यही चाहते हैं कि आपकी कंपनी और आगे बढ़े और पूरे वर्ल्ड में जानी जाए। उम्मीद करते हैं आपके साथ फ्यूचर में फिर जुड़ना होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थी आज हमारे साथ छवि अग्रवाल जी। ऐसे ही और फाउंडर्स के साथ जुड़ेंगे हम आपसे। बने रहिए माय स्टार्टअप टीवी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। We have over 400 startups and MSME shows on our TV channel. Do check out. My Startup TV is now available on Google Play Store, so you can get all the latest news on startups and MSMEs on the move. You can also support us by subscribing to our TV channel, and do not forget to press the bell icon. You can follow us on Koo, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, or visit our website www.mystartuptv.in. Thanks for watching.